Ganesh, when did you last speak to or interact with Sushant? In the month of September, when the Chichore film released 2019, on that time we discussed about the film, how we'll promote the film and each and everything. He is very in talking with the very positive in mood, and he says so many things about the direction and other things. He's planning to do the planning to do other films in very creative or something like. And I never think about that depression theory was a very wrong thing, because Sushant, in this birth, Sushant can't be depressed for 1 second. Then why did everybody come out and say that, he was depressed? He was suicidal. Why did Mahesh Bhatt, Mukesh Bhatt say he will end up like Parveen Babi? Why did apparently somebody called Suhrita who works with Mahesh Bhatt say that Mahesh Bhatt had told Riya Chakrabarti to leave him or she will sink with him? Why were all these theories being put out from? Yeah, why did Karan Johar write about depression being the reason? There are two types of people who state that Sushant is depression. One, they never meet Sushant. They just decide on one theory that there is a one behind. I know that there is a one behind script writer is there. That script writer is very illogical person, because that depression theory will never work out in the Sushant's life. And the second person who know the Sushant, but they are in some film industry, or I think there is some problem. They have some problem with Sushant's life, or they have some problem with Sushant's success. That's why they said that he is in depression mood. Did Sandeep Singh call you? Hello? Did Sandeep Singh call you? Sandeep Singh, no, I never called you Sandeep Singh. Mahesh Shetty? Mahesh Shetty, no. I'm in touch with the Mahesh Shetty on the years before. No, is somebody from his team? Somebody Try and from remember. Somebody from his team? I'm talking with the people who is connected with the Sushant. The last No, time. somebody from his team? Somebody from his team. Yeah, there are many persons in the team, like something Ankit Acharya or the other person. You can talk with them. They never will decide that the depression theory was a No. What did he tell you about what happened that night? What happened that night? Obviously, this is the happen in that night, or I think so 5 or 6 people will going there, because they know very well Sushant can't be physically. Sushant was a very strong person, so they need 5 to 6 people to kill Sushant, because it's not possible for 1 or 2 person. No, you say 5 to 6 people went there means what are you talking about? Who told you this? I talked with some person who is working in Sushant's friends, and they told me that the theory is connected with the Disha's and Sushant's the same. So 5 to 6 people went to his house. You have heard this from where? 13th June in the night. Who told you? Who's your source? The person who is connected with the Sushant's friend, close friend. That person is working with the Sushant's friend. Somebody who is working with Sushant's friend told you? Yeah. So somebody who is working with Sandeep Singh? That I told you or no personally, but now it will be somebody working with Sandeep Singh. Yes, somebody working with the Sandeep Singh. That person is my friend. He is coming in my home yesterday and many times before. Then I listened that Sushant's theory, depression theory, and all. So this person got to know from Sandeep or is working with Sandeep. So that's how the information came. The film was Narendra Modi. No. That was the film Sandeep made. I'm saying the person who is your source is working with Sandeep Singh, so got to know from Sandeep Singh about what happened on 13th night. He told
He told me Sandeep Singh says that, and this happened with the Sushant and Disha, and so he told me. So I know that. Sandeep Singh said to your friend who works with him Yeah. that this is connected with what happened to Disha, Yeah. which matches The what many other. the problem is that Sushant tells Sandeep Singh, and this I will organize the one media and open that, reveal the case, because Sushant is like something very Sushant never be डरता नहीं था वो अपने दोस्तों के लिए out ना of आप the मुझे way, तो उन्होंने खुलकर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुशांत ने संदीप सिंह को बताया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले इसको लेकर, right. वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। Yes, because वो out of the way जाके मदद करता था, he help the person who is friend out of the way, he will help. I am the best example for that. और ये बात संदीप सिंह ने खुद कही आपके सोर्स को जो उनके साथ काम करते हैं। Yes, yes, yes. मगर संदीप सिंह तो वो ये बात खुद से मानते नहीं है, उनको पूछा जाए वो तो कहते हैं मैं जानता ही नहीं हूँ कुछ। अभी तो ये तो कैंपेन हो गया ना, इतना बड़ा कैंपेन हो गया, अब तो किसी को भी कुछ भी बोलना तो ऑब्वियसली वो डरेगा या फिर नहीं बोलेगा, या फिर ऑब्वियसली बड़े लोग इन्वॉल्व हैं तो कोई भी यही चाहेगा कि मैं इस केस से बाहर रहूं। तो उन्होंने कहा कि 13 तारीख को कई लोग उनके घर गए थे। राइट। ये संदीप ने कहा आपके दोस्त को। राइट। और क्या कहा? भाई दिशा का उसको पता लग गया था, सुशांत ने यही बात बताई संदीप सिंह को, देन बस संदीप सिंह ने वही कल कॉल कर दिया बाकी लोगों को, देन दे विल ट्राई टू फिनिश सुशांत। आप ये बात सीबीआई के सामने बोलने को तैयार हैं? हाँ, व्हाई नॉट। अब तक आपने यह बात किसको कही? अब तक ये बात मैंने किसी को कही नहीं, बट नाउ इट्स अ कैंपेन। ये जंग सिर्फ सुशांत और उसके फैमिली की नहीं, ये पूरे इंडिया की जंग है। ये मैटर में अगर हम लोग आगे नहीं आएंगे तो ऐसे तो इंसाफ खत्म हो जाएगा। अंकित, you were former personal assistant to Sushant, so that means you worked very closely with him. आप काफ़ी उनके करीबी थे, उनके साथ क्लोजली काम करते थे। उसके बारे में ज़रा बताइए, कब तक, कितनी देर तक और कितनी देर का एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का? देखिए, मैं तो 2017 से 2019 तक मैं था उनके साथ, जुलाई। मैं उनके बाद फिर उनको मतलब उनके साथ रहता था, शूटिंग से लेकर मतलब सेट से लेकर पूरा घर तक उनका देखभाल करता था। एंड उनका जो पर्सनल से पर्सनल चीज़ है, जैसे किताब बुक्स पढ़ना एंड उनका लैपटॉप, ये सब उनको मतलब बहुत मतलब ये सब पढ़ने लिखने में बहुत शौक था। एंड उनका जो मैं 4 बजे उनके साथ मतलब 4 बजे उनको उठाता था मैं, एंड मैं सुबह मतलब उनके साथ सोता था मैं रात को, और सुबह 4 बजे मैं उनको उठाता था। उठाने के बाद उनको टेलीस्कोप, जो टेलीस्कोप है वो जुपिटर, सैटर्न, मून, ये सब देखते रहते थे, मुझे भी दिखाते थे। एंड वो महामृत्युंजय मंत्र का मतलब वो जाप भी सुनते थे, मैं लगा के देता था उनको। मतलब बहुत मतलब भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। एंड उनको मतलब कॉफ़ी देना एंड उनको मतलब एप्पल काट के देना, ये सब करता था। एंड उनका जो टेनिस कोर्ट था, टेनिस कोर्ट में भी मुझे लेके जाते थे। वो अपने गाड़ी चलाते थे, मैं बगल में बैठे उनको मतलब खिलाते वो गाना गाते हुए जाते थे। उनको एकदम डिप्रेस टाइप के थे नहीं थे एकदम, मतलब ऐसा मतलब मैं उनका मतलब छोटा भाई, वो मेरे बड़े भाई, मतलब ऐसा उनको फैमिली ऐसे रखते थे, एकदम सदस्य मेंबर की तरह। ओके, मतलब ये मतलब ऐसा था कि एकदम अपना जो फैमिली जैसा होता है ना, वैसे टाइप को मुझे रखते थे, अपना भाई जैसा मानते थे मुझे। मतलब ऐसे डिप्रेस तो नहीं थे, जब मैं था तो ऐसे डिप्रेस नहीं थे, कोई दवाई खाना ये सब नहीं। हाँ, दवाई खाते थे वो नॉर्मल प्रोटीन शेक, ये सब जिम में जो होते प्रोटीन शेक एंड ये सब कैल्शियम की दवाई, ये सब खाते रहते थे। डिप्रेशन एकदम नहीं था। जब मैं था तो एकदम अच्छा से उनको मतलब सुखी से देखना चाहता था। माँ के बारे में पोएम लिखते थे डायरी में, अगले शेड्यूल में क्या होने वाला है,
क्या नहीं होने वाला, जैसे शूटिंग में कब जाना है और आपको प्रमोशन में कब जाना है, मीटिंग में कब जाना है, सब शेड्यूल अगले शेड्यूल में लिख देते थे और रेडी करके उनको मैं बैग में मतलब रख देता, उनको याद दिलाता था मैं, ये सब चलता रहता था। अंकित, आपको लगता है कि उनको गला घोट के उनको मारा गया, आपको क्यों लगता है? देखिए, मैं उनको करीब से जानता हूँ, सबसे पहला बड़ा बात, उनको मतलब वो कभी सुसाइड नहीं कर सकते हैं। ये उनको कोई मतलब दूसरे को ऐसे रोकते हैं करने के लिए, मतलब ऐसा मत करो अपने, मतलब ऐसा मत करो, कभी अपना स्ट्रगल से आगे बढ़ो, ये सब करने से क्या फ़ायदा, ये तो फिर अपने माँ बाप को ही तकलीफ होगी, ये खुद हम लोग को समझाते हुए आ रहे हैं। तो ऐसा आदमी, ऐसा समझाते हुए आदमी मतलब क्यों करेंगे ऐसा, अपने आप क्यों करेंगे सुसाइड? बट जब मैं अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया, अपने तरफ से, अब मेरे पास कम से कम उनके 4-5 फ़ोटो भी हैं डेड बॉडी के, मैं अपने तरफ से मतलब किया मैंने इन्वेस्टिगेशन, तो उनका जो ये शेप जो है, उनका जो मार्क है, मतलब यू मार्क का नहीं, अगर फांसी लटकाते तो यू मार्क का आता है, ओके। जब अगर कोई गला घोट के पीछे से मारता है तो ओ मार्क का आता है। अब मैंने गौर से देखा उनका मतलब जो मतलब गला का जो मार्क है उनका, मतलब फज का डॉग से एकदम मिलता जुलता, दावा किया मैंने, फज का डॉग से मिलता जुलता है। फज यानी कि उनके डॉग का उनको, बट मेरा घुमाना काम नहीं है, पहले घुमाता था। यस, प्रिय डॉग, जो उनके प्रिय डॉग थे, तो उनका जो मैं घुमाता था, बेल्ट भी कभी धो देता था, तो वो बेल्ट का निशान हमको याद है कि वो बेल्ट का निशान जो गोल सा बक्कल है उनका साइड में भी लगा हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए वो सुसाइड करते हैं, उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे, अगर वो सुसाइड करते हैं तो सुसाइड करने में मतलब उनका जो ग्रीन कपड़ा, वो ग्रीन कपड़ा से मिलता नहीं है, ठीक है। अगर वो सुसाइड करते हैं तो जो उनके नौकर थे उधर, तो उनको नौकर को कम से कम उसको क्यों बॉडी को छूने का अधिकार नहीं है, जब तक पुलिस नहीं आ जाती तब उनको छूने का अधिकार नहीं है, पंखे से लटकना देना चाहिए था। बट क्यों ऐसा क्यों किया, उनको क्यों उतारा गया? अगर ये भी, और एक बात और निकलती है कि मैं उनको 15-15 मिनट में चेक करने जाता था कि क्या कर रहे हैं, उनको कभी कभी मतलब अकेले फील होने नहीं देता था मैं। 15-15 मिनट में मैं दरवाज़ा खोल के चले आता था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो बाथरूम जाए, चाहे नहाने जाए, मैं 15-15 मेरा परमिशन था कि मैं अंदर जाके उनको देखूं क्या उनको चाहिए, क्या तकलीफ़ है। बट इन लोग जो नौकर है, इन लोग को मालूम चलना चाहिए, स्टाफ जो थे, इन लोग को मालूम चलना चाहिए कि 15-15 मिनट में जाना चाहिए उनको, देखभाल, मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उनका। एंड मैं रहता था तो ऐसा करता था। और 14 जून को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में उन लोग क्यों नहीं गए, अब भैया के उधर क्यों नहीं गए, और दरवाज़ा क्यों तोड़ा नहीं गया, चाबी को क्यों बुलाया गया? दरवाज़ा तोड़ना चाहिए ना, कोई अगर चलिए दरवाज़ा तोड़ देते हैं, नया बन जाता दरवाज़ा, भले उनका जान तो बच जाता, कुछ भी हो सकता था। और उनका जब ऐसा हो रही थी, उनको फर्ज उनके साथ क्यों नहीं था, फर्ज किधर था? जी, फर्ज किधर था आपके पास? क्या आप जानते हैं दीपेश को? दीपेश को तो मैं जानता नहीं हूँ, बट एक बार मैं शायद मिला उनसे, क्योंकि जब मैं गांव से जब मैं आया था तो एक बार फिर वो कहाँ ट्रिप पे चले गए थे, मुझे मालूम नहीं कौन से ट्रिप पे गए थे। फिर मैं उनसे थोड़ा मिला, 5 मिनट के लिए मिला, कि मैं उनसे पूछा आपका नाम क्या, तो दीपेश बोल रहा था। तो उन्होंने बोला कि मैडम ने सब स्टाफ को बाहर, मतलब जो पुराने स्टाफ है बाहर निकाल दिए, न्यू स्टाफ को हायर किए। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? तो उन्होंने पूछा मालूम नहीं, वो मैडम सर से जाके पूछा, मैडम पूछे कौन मैडम, तो कुछ बोला नहीं उन्होंने, फिर चल दिया। तो मैंने फ़ोन लगाया सर को, तो उनका स्विच ऑफ फ़ोन आ रहा था। फिर मैंने बाद में भी लगाया, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। गणेश और अंकित, अगर आप लोगों को सीबीआई के सामने अपनी बात रखनी पड़े, आप दोनों तैयार हैं, ये बड़ी बात है। गणेश, आप कुछ और कहना चाहते हैं? एकदम सर, ऑफ कोर्स सर, तैयार है। गणेश जी, गणेश जी, ये जो 5-6 लोगों की बात हो रही है, तो जरा उसको कंप्लीट कीजिए। आपको बताया गया कि 5-6 लोग 13 तारीख को सुशांत के फ्लैट में आए, उसके बाद क्या पता है आपको, क्या हुआ? उसके बाद जस्ट ये 2 इशू है, या तो 13 तारीख को रात को मर्डर हुआ है, या तो 14 तारीख को सुबह मीन्स वही जो टाइमिंग बताया है। बिकॉज अगर रात को 13 तारीख को हुआ है तो उन्हीं लोगों ने किया जो पार्टी में गए, और अगर 14 को हुआ है तो या तो उन लोगों ने किसी को भेजा है, या तो फिर ये हुआ है। And why? How come there's no CCTV footage? That is it's. You should ask the Mumbai police that. When the big people is involved, they can off the CCTV footage and all.
This is the very small things for them. That is what Arnav needs to be ji, what investigated. Ganesh ji is हाँ saying. सीसीटीवी किधर we है have एक अंकित 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 बोलिए, अंकित बोलिए, किधर है कौन, किधर है क्या किधर है अंकित, बताइए। सीसीटीवी फुटेज उस दिन बंद क्यों हुआ था और उन लोग के जो स्टाफ थे किधर गए थे हाँ? रिया चक्रवर्ती छोड़ के क्यों गई थी आज उनको? मुझे जान से धमकी की मारने की धमकी दी जा रही है। किसने हाँ? दी है, किसने दी अंकित? Arnav, this happened कल also with परसों ही me मोबाइल में also. फोन आया था धमकी Arnav, धमकी धमकी दी कौन थी। कौन धमकी दे रहा है आपको अंकित? हाँ? लड़ रहा हूं मैं उनके लिए, उनके फैमिली के लिए लड़ रहा हूं। हाँ? उनके फैमिली के लिए लड़ रहा हूं मैं। कौन धमकी? जॉब चली गई उनके लिए, मेरे Me also. जॉब मेरी चली गई है। नहीं, किसने धमकी दी है अंकित, बताइए। गणेश बताइए, पहले अंकित बताइए क्या धमकी की बात कर रहे हैं? आपको कोई फोन आया, क्या हुआ, किसने धमकी दी? धमकी में उल्टे सीधे सुबेरे मुझे उल्टे सीधे धमकी आई थी, गाली गलौज से बात किया जा रहा था, मैंने इग्नोर कर दिया, मुझे डर भी लग रहा था, मैंने ब्लॉक करके डिलीट कर दिया। अब मेरे उतने दिमाग में मुझे ख्याल भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है इस समय। हाँ, फिर मुझे मेरे एक एसएमएस भी आया कि उसमें मतलब पब्लिसिटी मत करो, मत ये सब सुशांत को बोलो, मारने के बाद तुमको क्या मिल रहा है, किस नंबर से मैं ये आई? सब मुझे धमकी दी जा रही है। किस उनके लिए नंबर से मैं धमकी जॉब आई? खो दिया हूँ, वो मुझे मालूम नहीं, मुझे याद नहीं रहा उस समय, बट उनके लिए मैं जॉब खो दिया, उनके लिए बहुत कुछ खो दिया। अभी भी मैं लड़ रहा हूँ, मरते दम तक लड़ूंगा। उस समय 14 जून को 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच दोपहर को क्या हुआ था, उनको मतलब उसके हिसाब क्यों नहीं गए उसके अंदर, ये मेरा क्वेश्चन है। ये रिया चक्रवर्ती क्या बोल रही है, यूरोप में जाके एक पोस्टर देख के उनको डिप्रेशन हो गया। अरे मेरे भाई, और भी तो यूरोप में है, उन लोग भी तो देख रहे हैं, उन लोग को डिप्रेशन नहीं हो रही है? हाँ, सब मन गढ़ंत बातें हैं सब। वो खुद एक मतलब वो खुद एक पेंटर थे, पेंटिंग करते थे, मतलब एक भोलेनाथ का एक रुद्र अवतार का पेंटिंग बनाते थे, वो भी पेंटर थे। तो उनको एक पेंटर देख के मतलब उनको क्यों ऐसा लग गया कि डिप्रेशन में, और भी तो आदमी देख रहे हैं जी, जिंदगी में डिप्रेस हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं जानता हूं उनको, कभी जिंदगी में डिप्रेस हो ही नहीं सकते। ये आने के बाद अच्छा एक बात बताइए, नहीं एक बात बताइए, महेश भट्ट को उनको क्या बोलने की जरूरत, उनको कैसे मालूम कि वो सुसाइड करने वाले हैं, कैसे मालूम उनको? Yeah. तो many people लोग धमकी देते रहे हैं, आपको but they भी are saying that yes, but क्या? they are saying on the application, not the Facebook or the Twitter, they are saying that why you are doing these things, you are the Maharashtrian, you are the part of Maharashtra or something, कुछ मराठी में भी बातें कर रहे हैं। तो और इमीडिएटली उन लोगों का जो लोगो है फेसबुक के, उसका लोगो है महाराष्ट्र पुलिस का, एंड उनके पास जो उन्होंने जो फीडबैक दिया है, न्यूज फीडबैक जो उनका जो पोस्ट करते हैं, वो 99% शिवसेना का है। और बाद में वो लोग धमकी देने के बाद विदिन जैसा वो रीड का मैसेज आता है उनको कि गणेश ने रीड कर लिया, विदिन 1 मिनट दे डिलीटेड दैट मैसेज। क्या करना क्या चाहते हैं? अगर आप, मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को, अगर आप खुद ही डर रहे हो तो डराओगे कैसे मुझे? मैंने तो टेलीविजन पे बोल दिया मैं जाऊंगा सीबीआई के पास, मैं हेल्प करूंगा सुशांत की। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई ही सेव माय लाइफ, दैट्स नॉट नाउ माय टर्न, आई विल डू फॉर सुशांत। अगर जान जाती है तो जाए। राइट, यू आर राइट, जाए। हाँ, हम भी जाए, मतलब मैं भी मर जाऊंगा तब भी मैं जस्टिस दिला के रहूंगा, पक्का।